Assalamu alaikum students. Our today's topic is auxiliaries. See, जो auxiliaries है, we have two types of auxiliaries. One is known as primary auxiliaries. Primary auxiliaries. इनका दूसरा नाम है helping verbs. Helping verbs. And second one is modal auxiliaries. Modal auxiliaries, or simply we say them modals. इनको हम कहते हैं simply modals. जो primary auxiliaries हमें टॉपिक है, auxiliary के दो टाइप्स है. एक को कहते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे को कहते हैं हम मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज. जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है दे आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. देखिए, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इसमें आता है एक टू बी में है इज, एम और वाज, वर. इसी तरह we have to do में है do, does and did. Then we have to have में है have, has and had. Try to understand. और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है और मॉडल्स है इसमें हमें है shall, will, should, would, may, might, can, could, dare, need not, ought to, etc. तो they are modal auxiliaries और modals. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड modal auxiliaries. Try to understand. देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या फर्क है. द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज इज these primary auxiliaries, they can be used or helping verbs. They can be used without a main verb. When they are used without a main verb, at that time they act as a main verb. देखो, पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्ब है ना, वर्ब दिखाता है हमें दो चीजें. एक एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ बीइंग. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी मैं लिखूंगा या हेल्पिंग वर्ब, he is playing a game. He is playing a game. Here is helping verb and play is main verb. It gives me more meaning to the main verb. And here with the help of is, the sentence becomes present progressive or present continuous. लेकिन अगर मैं बताऊंगा दिस इज नोन एज प्ले, एक्शन वर्ड, रन, प्ले है, रीड. अगर मैं कहूंगा ही, तो दिस इज एन एक्शन वर्ड, देयरफॉर एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट हियर प्ले. बट इफ आई राइट ही इज ए मैन, मैं यहां लिखता हूं ही इज ए मैन. हियर इज जो है इट हैज बीन रिटन विदाउट द मेन वर्ब. मैंने इज यहां विदाउट मेन वर्ब लिखा है. हियर is acts as a main verb. It has been used without a main verb and it acts as a main verb. यहां ये दिखाता है state of being. इस verb को हम state to verb भी कहते हैं. It shows state of being. Therefore, it is also known as a state to verb. He is a man. What he is? He is a man. तो कहने का मतलब क्या है? Here is used as helping verb and is used without the main verb. When it is used without main verb, at that time it acts as a main verb. अब आप देखो मॉडल ऑक्सिलरीज.
मैंने बताया shall, will, may, might. अगर मैंने कहा he may, only ये लिखूंगा तो incomplete meaning. I cannot use modal auxiliary without a main verb. तो जरूरी मैंने इसके आगे ऐड करना है main verb, then it will give meaning. मैं कहूंगा he may come, he may come. तो यहां may cannot be used without main verb. You understood? It may rain. It may rain. You must go there. So modal auxiliaries are never used without main verbs, and primary auxiliaries, they can be used without main verb. When they are used without main verb, at that time they act as a main verb. ये इन दो दरमियान एक खास डिफरेंस है. अब मैं आपको बताऊंगा ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज में अब आते हैं हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी और मॉडल ऑक्सिलरीज भी. ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्सिलरीज. इन ऑक्सिलरीज में हमें आते हैं बोथ. जब मैंने ऑक्सिलरीज का नाम बताया, इसमें आता है हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी भी और मॉडल ऑक्सिलरी भी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स and a main verb? What is the difference between auxiliary and a main verb? Auxiliary और main verb में क्या फर्क है? Auxiliary में अब आता है हमें primary auxiliary भी, helping verbs भी, modal auxiliaries भी और modals भी. इस auxiliary और main verb में क्या फर्क है? See the first difference. The first difference is that with the help of auxiliary we can make a negative statement. हम नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी से. सॉरी, वेदर यू हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी और यू हैव मॉडल ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी की मदद से हम नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट बाय मेन वर्ब यू कैन मेक ए यू कैन नॉट मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट. आप मेन वर्ब से नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा ही इज नॉट प्लेइंग अ गेम. प्लेइंग ए गेम, तो यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी के बाद मैंने नॉट यूज किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमें नेगेटिव स्टेटमेंट. अगर मैं लिखता आई राइट ए लेटर, तो यू कैन नॉट, अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है, यू कैन नॉट राइट आई राइट नॉट ए लेटर. वर्ब के बाद आप नॉट यूज करके नेगेटिव नहीं बना सकते हैं. इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव आपने यहाँ ऑक्सिलरी यूज करना है. आपने यहाँ हम लिखेंगे यहाँ आई डू नॉट राइट ए लेटर. आई डू नॉट राइट ए लेटर. क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल है ये हम टेंस में पढ़ेंगे. यहाँ हमें अपना हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी नहीं होता है. इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव, तो यहाँ हम डू डस करते हैं यूज एज ऑक्सिलरी वर्ब सो दैट वी कैन मेक द सेंटेंस नेगेटिव. और पास्ट सिंपल में डिड करते हैं यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब सो दैट वी कैन मेक एन स्टेटमेंट नेगेटिव. बिकॉज विदाउट एन ऑक्सिलरी यू कैन नॉट मेक एन स्टेटमेंट एनी सेंटेंस ए नेगेटिव सेंटेंस. ये पहली मेन डिफरेंस है. द सेकंड डिफरेंस between auxiliary and main verb is that is with the help of auxiliary we can make interrogatives. हम interrogative बना सकते हैं auxiliary की मदद से, whether you have primary auxiliary or you have modal auxiliary, but with the help of main verb you cannot make what interrogatives. For example मैं कहूंगा are you playing a game? Are you playing a game? You are playing a game. Are you playing a game? लेकिन वर्ब से आप ये इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हैं. यहां आपको मैं एक ये चीज याद दिलाऊंगा जो आपने नर्सरी एलकेजी यूकेजी में अगर आप याद दिलाओ वो क्लासेस, आपको उन क्लासों में एक क्वेश्चन पूछा जाता था. राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्लावर्स. 5 फ्लावर्स. तो लास्ट में आज आप देखो ये किंडरगार्टन क्लासेस में, तो लास्ट में ये जब ऐसा आपको क्वेश्चन आता है राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्लावर्स, लास्ट में इसको फुल स्टॉप होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो डेफिनेटली ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता. ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट नहीं हुआ है. ये किससे स्टार्ट हुआ है? ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है. दैट इज व्हाई वी एंड द सेंटेंस विद फुल स्टॉप. ठीक है, तो फिर ये क्या है? दिस वी विल डिस्कस इन
फ्यूचर लेक्चर्स, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. द थर्ड डिफरेंस बिटवीन auxiliary and main verb is, with the help of auxiliaries we can make question tags. हम question tags बनाते हैं, but with the help of this main verb we cannot make question tags. You are playing a game, aren't you? Aren't you? It is a question tag. Aren't you? ठीक है. She is helping you, isn't she? She was not helping me, was she? So these are question tags. So this is the main difference between auxiliaries and main verbs. Hope you would have understood the lesson. Watch my future lectures and inshallah you will get more benefit. Thanks.